Hi friends, today I am going to teach you chapter 2 cleaning food, right? Chapter name is cleaning food. Please take out your notebook. This lecture is for class 6th. This lecture is for class 6th. सबसे पहले you have to take your notebook on your table, and these are the important points which I am going to discuss today with you. No doubt this chapter is theoretical chapter. There is a little bit experiment which you can do it your own, and this is a very simple chapter, so don't get worried ki what is this, how we can clean the food, and what are the words and what is the things, but some scientific thoughts should come in between. So you have to write down the important points. The chapter wants to say that how we can clean our food and how we can clean any substance. We can write here substance also, right? Substance, or you can say mixture also, or anything those who are mixed or you want to be separate. This chapter will tell us the story of how we can separate two things and how we can do the cleaning exercise for anything, whether it is food, whether it is material, whether it is your whatever substance you are having, you want to separate it. So these are the points where you need to be focused. What is the use of cleaning, right? So what is the use of cleaning? To remove an undesirable component. See, my request is this. These are the important points. Please note down in your notebook or rough book, so that once I start my lecture, you should be confident enough to know the fact. Now, second one is remove a harmful component, right? Then third one, pure sample of a substance. These are the points. Now, obtain a useful component, right? So, cleaning food or substance or material or mixtures, what is the importance of this we want to understand. First of all, remove an undesirable component. Second one is harmful component. Third one is to obtain the pure sample of a substance. And fourth one is to obtain an useful component. Because if you see any food, any substance, any mixture, right? Then this again we will go in a different part. This is a different part of this chapter, harvesting of crops, right? Just I am reading these topics because I am going to cover these topics in today's lecture. These are the points. That's why I am writing here the points to understand you. Harvesting of crops, है ना? This is used for mainly in agriculture. So first one is manual, second one is mechanical, and third one is threshing. We will discuss in detail. These are the points which you are supposed to write in your note paper. And method of food cleaning. We are going to cover in our lecture what are the methods of food cleaning. The first one is winnowing, second one is hand picking, and third one is slaving, and last one is sedimentation, and fourth one is filtration, and one is evaporation, right? So these are the important points which I am going to cover in today's lecture. Please note down in your notebook. Right now I am going to explain you each one. Please note down. First one is to remove an undesirable component. Second one is to remove an harmful component. Third one is to obtain the pure sample of a substance. To obtain a useful component. Right, these are the importance of cleaning the food and harvesting of crops, manual harvesting, mechanical harvesting, threshing, and method of food cleaning, winnowing, hand picking, sieving, then sedimentation, and filtration and evaporation. So these are the words which I am going to explain you today. First, we are going to discuss cleaning food, right? What is the use of cleaning food? We need to understand, or any substance or mixture. What is the use of cleaning food or substance or mixture? Because to remove undesirable component, आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को आप उसमें से निकाल सकते हो, राइट? जैसे आपके पास क्या है, चने का दाल है, राइट? चने का दाल है और चने के दाल में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे मिट्टी का ढेला है,
पत्थर है, कंकर है, राइट, जो आप खाओगे तो आपको हार्मफुल होगा, राइट, और उसकी जरूरत आपको नहीं है। तो फॉर दैट व्हाट यू डू, क्लीनिंग आप करोगे फूड को, राइट। सेकेंड वन इज हार्मफुल कंपोनेंट, जैसे आपका खाने का चीज है, उसके अंदर कोई चीज हार्मफुल चीज अंदर डला हुआ है, राइस है, देयर इज सम डिफरेंट सब्सटेंस आर मिक्स्ड ऑलरेडी इन राइस। खेती होती है, खेती होने के बाद क्या होता है, वी आर गेटिंग द राइस, वी आर गेटिंग, गेहूं जब आता है आपके पास खेत से तो क्या होता है, उसमें बहुत सारे चीज उसमें होते हैं, तो उसको हम साफ कैसे करेंगे। जब कोई भी चीज आपके खेत में होता है, वेदर इट इज वेजिटेबल, वेदर इट इज फ्रूट, वेदर इट इज ग्रेन्स, राइट, एंड whether it is in your building of house, in construction, or in chemistry, in chemical lab, anywhere else, when you want to separate or clean the substance, there is a word also I am using, separation. Separation for what? Undesirable component, harmful component, pure sample of a substance. When we need to have some pure, right? Pure चीज जब आपको चाहिए, तो pure चीज होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको बाहर निकालना चाहते हैं। तो हम उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है हम उसको बाहर कैसे निकालेंगे, उसके अलग अलग मेथड्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो सबसे पहले तो ये हमको जानना जरूरी है कि हमको कोई भी चीज, वो सब्सटेंस हो, मिक्सचर हो, ग्रेन्स हो, वेदर इट इज वाटर क्यों नहीं हो, हम पानी क्या करते हैं, हम फिल्टर यूज करते हैं। वाई वी आर यूजिंग फिल्टर, टू क्लीन द वाटर पोर्सन, टू गेट ए प्योर वाटर वी आर यूजिंग फिल्टर, राइट। उसके लिए वो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है, विच वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन इन आवर वीडियो। आई एम ट्राइंग टू कवर दिस ऑल पॉइंट्स इन टुडे लेक्चर्स। सो अनडिजायरेबल कंपोनेंट, जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उस चीज को आप बाहर निकाल देना चाहते हो, राइट। सेकेंड वन इज हार्मफुल कंपोनेंट, जो आपके लिए नुकसानदेह है, विच विल बी हार्मफुल फॉर यू। अगर आप उसको पेट में डालोगे पत्थर के टुकड़े को राइस के साथ, तो पत्थर का टुकड़ा आपके पेट में ही पत्थर बन के रह जाएगा, ठीक है, और चावल डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पत्थर बाहर निकालना है चावल से। तब पत्थर बाहर चावल से कैसे निकालेंगे, उसके मेथड्स अलग हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे अभी। फिर क्या होता है, यूजफुल कंपोनेंट, टू ऑब्टेन ए यूजफुल कंपोनेंट। आपको यूजफुल कंपोनेंट कैसे मिलेगा, यानी आपके काम का। अब पत्थर आपके काम का है नहीं, अभी आपके पास एक ट्रक आके खड़ा हो गया, दैट ट्रक कम्स फ्रॉम ए स्क्रैप। स्क्रैप में क्या होता है, आपके पास आयरन भी है, कॉपर भी है और ब्रास भी है। तो आपको अभी उसमें से आयरन बाहर निकालना है। आपके पास एक पॉट है, यू आर हैविंग ए पॉट वेयर यू आर हैविंग सम स्मॉल पार्ट्स ऑफ आयरन, स्मॉल पार्ट्स ऑफ ब्रास, स्मॉल पार्ट्स ऑफ कॉपर। अब आपको आयरन बाहर निकालना है, ठीक है। अब आयरन बाहर निकालेंगे, उसके लिए क्या मेथड होगा हमारा, नो पिकिंग। अब आप पिकिंग करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट ले लेते हैं, और मैग्नेट को जब हम आप ऊपर ऐसे 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 करोगे तो सारा आयरन पार्ट मैग्नेट में चिपक जाएगा, और उसको फिर मैग्नेट को आप अलग करोगे और उसको झाड़ दोगे। तो अभी हमको समझना है पहले कि क्लीनिंग ऑफ फूड या सब्सटेंस या मिक्सचर, क्योंकि आप बुक से कंफ्यूज मत होना, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है, अलग अलग चीजें हैं, पर थॉट एक ही है। वो एनसीईआरटी का बुक हो, सीबीएसई का बुक हो, गुजरात बोर्ड का बुक्स हो, हम आपको पीडीएफ शेयर करेंगे, उसको स्टडी करना है, जो होमवर्क देंगे, जो क्वेश्चन आंसर देंगे, वो उसी में से आपको बनाना है, ठीक है। नहीं बनता है, यू कैन कॉल मी और यू कैन डिस्कस विथ मी, यू ऑल आर हैविंग माय सेल नंबर ऑन योर व्हाट्सएप, सो डोंट वरी फॉर दैट। अभी हमको समझना है ये चीजों को कि हम ये चीज क्यों करते हैं और हमारे लाइफ के लिए ये चीज क्या है, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स इन साइंस ऑल्सो। बिकॉज अगर हमको ये पता नहीं चलेगा कि दो चीजें हैं, अगर हमको ये पता नहीं चलेगा कि दो चीज है, ठीक है, और ये दोनों मिक्स होके ये एक हो गया, और एक हुआ जिसमें ये दोनों मिक्स है, और उसमें से एक जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है और एक जो है हमारे लिए सही है, तो जो हार्मफुल है उसको हमको बाहर निकालना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिमूव द अनडिजायरेबल, harmful, how to get a pure substance, and what is the useful substance for us. So all about this chapter is it going to explain us, all this about this chapter हमको सिखाने के लिए है कि हम ये कैसे करेंगे। अब हम आते हैं कि what is the use of these cleaning in our harvesting। खेत सबके पास लगभग होगा और खेत में आप जाते होंगे,
और अगर नहीं जाते हैं तो इस बार वेकेशन में खेत में जाइए और वहां पे जो आपका एग्रीकल्चर हो रहा होगा उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। वेन यू सी एनीथिंग, साइंस इज ए सब्जेक्ट हु इंस्पायर यू। साइंस आपको तब आएगा जब आप उसको देखोगे, जब आप उसके बारे में समझने की कोशिश करोगे कि ये क्या चीज है। जब आप ये हार्वेस्टिंग इज ए वर्ड, इट इंडिकेट्स हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। आपके खेत में खेती होती है, उसमें प्रोसेस कैसे होता है। ऐसा तो है नहीं गेहूं का पेड़ आया, हमने काटा और उसमें से आटा बनाया और खा लिया, ऐसा नहीं होता है। इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब वो हमको प्रोसेस समझना है कि वो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आता है मैनुअल हार्वेस्टिंग। मैनुअल हार्वेस्टिंग में कैसा होता है, आपने देखा होगा जब आप खेत में जाएंगे, अब शायद कम हो गया, ओल्डर टाइम इट यूज टू बी देयर, कि खेत में क्या होता है कि एक वहां पे पिलर होता है, राइट, और उसमें एक जो है एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स होता है, अलग अलग प्लेस के हिसाब से उसको बांध दिया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर के सीड्स होते हैं। जैसे आपका गेहूं है तो गेहूं के सब बहुत सारे पड़े होंगे क्रॉप्स, और यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे राउंड, यहाँ से राउंड, यहाँ से राउंड, यहाँ से राउंड, ये घूमता रहता है, राइट। तो जब ये राउंड 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 घूमता है तो क्या होता है, जो आपका क्रॉप्स होता है, जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसमें से क्या होता है, गेहूं बाहर निकल जाता है और जो उसके रॉ पार्ट्स होते हैं वो वहीं पे पड़े होते हैं। यानी आपका गेहूं अलग हो गया और रॉ पार्ट्स यहाँ पे पड़े हो गए, ठीक है। तो मैनुअल हार्वेस्टिंग में एक ये आता है। प्लस मैनुअल हार्वेस्टिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत तेज हवा आता रहता है और हाथ में ऐसे ले लेते हैं तो गेहूं नीचे गिरेगा। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझा देता हूं। मैनुअल प्रोसेस में एक तो हो गया कि कोई भी एनिमल्स दे यूज टू वर्क, और आपका मैनुअल जो प्रोसेस है उसमें, जिसमें कि एक तो हो गया कि आपका कोई भी एनिमल है, देखिए यहाँ पे एक डंडा बंधा होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स रख दिए जाते हैं गेहूं के, ठीक है, जिसको कि हमको अलग करना है, क्योंकि आपका गेहूं जो है वो प्लांट के साथ होता है, वो ड्राई होने के बाद। और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एनिमल होता है, या तो वो ऑक्स होगा या यू आर समवेयर हैविंग हॉर्स आल्सो, तो दिस स्टार्ट मूविंग क्लॉकवाइज, राइट, ठीक है। ये क्लॉकवाइज ये एनिमल मूव करेगा और इसके अंदर मूव करते 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 क्या होता है, यू विल गेट ग्रेन्स। ग्रेन्स क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है और इसके जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो इसके बाहर निकल जाते हैं, राइट। एक तो ये प्रोसेस हो गया मैनुअल में। सेकंड क्या होता है, यहाँ पे सपोज की एक आदमी है, इसने यहाँ पे क्या किया कि आपका जो ग्रेन्स है वो ग्रेन्स यहाँ पे ले लिया और देर इज ए विंड, ठीक है, हवा यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, विंड का जो फ्लो है, द एयर फ्लोज लाइक दिस वे। तो यहां से क्या करेगा, वो जो आपका मिक्स्ड ग्रेन है वो यहाँ पे रखा हुआ है और इसको ऊपर से वो गिराएगा। जब गिराएगा तो क्या होगा, गेहूं यहाँ पे गिरेगा और इसके जो एसेस है वो यहाँ पे गिरेंगे, राइट। तो आपका क्या होगा, गेहूं अलग हो जाएगा, वीट अलग हो जाएगा और इसके एसेस अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द मैनुअल प्रोसेस जो अभी बहुत सारे गांव में अभी भी होता है और वो किया जाता है। जिनके पास कैपिटल कम है, जिनके पास मैन पावर कम है, वो लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिंपल प्रोसेस, ये इसको बोलते हैं हम लोग मैनुअल प्रोसेस। देखोगे ये सब चीजें होती हैं। इसका मतलब मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग टोटली क्या होता है, मशीन से होता है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं जिसके अंदर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के प्रोसेस के लिए वो किया जाता है। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग में बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं जिस मशीनों के थ्रू अलग कर दिया जाता है, राइट। इसके बाद आता है थ्रेसिंग ऐसा है कि देयर इज ए मशीन विच नेम इज थ्रेसर इटसेल्फ। तो उससे क्या होता है, वो थ्रेसिंग मशीन होती है जिससे कि वो थ्रेसर मशीन के थ्रू ग्रेन्स को अलग किया जाता है और उसके जो एसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। एंड दीज आर द मेथड्स बाय विच यू कैन हार्वेस्ट द क्रॉप्स।
इसमें क्या होता है कि हार्वेस्टिंग मैनुअल जो है वो उसका परसेंटेज अभी सिर्फ 20% हो गया है। नाउ मैकेनिकल जो है वो 40% हो गया है। एंड नाउ दिस वन जो है ये 40% हो गया है। तो अभी एट प्रेजेंट द एग्रीकल्चर इज बीइंग डन एंड एग्रीकल्चर एंड हार्वेस्टिंग जो क्रॉप्स है दिस इज नाउ थ्रेसिंग एंड मैकेनिकल is having the more percentage in our agriculture, right? तो ये था हमारा मेथड क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग का। अब हम इसके बाद आते हैं, दिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मेथड फॉर फूड क्लीनिंग। अब हम खाना साफ कैसे करें, तो ये तो एग्रीकल्चर हो गया। अब ये जो है ये दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेथड्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सो पहला आता है विनोविंग। अब हमको समझना है कि विनोइंग मेथड्स क्या होता है, राइट? तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे आदमी है और इसने यहां से लेके विंड पे ऐसे किया तो गेहूं यहाँ पे गिरा, इसके यहां गिरे। ये मेथड ही कहलाता है विनोइंग मेथड्स, जो हमने ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जहां पे कि हाथ में लेके से करते हैं और वहां पे वो गिरता है। ठीक है, समय कम है पर फिर दूसरे वीडियो में कवर करेंगे हम लोग, पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, नाउ हैंड पिकिंग, दीज आर वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजिली। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग में क्या होता है कि आपने देखा होगा घरों में हमारे ग्रैंड मदर होती हैं या माताएं होती हैं, यू कैन सी योर मदर ऑल्सो आपके घर में, कि वो कोई भी चीज लेकर के, जैसे चावल है तो उसमें कुछ कुछ मिक्स होता है, तो बिफोर कुकिंग द फूड वो लोग क्या करते हैं, उसमें कोई कंकड़ है पत्थर है तो दे स्टार्ट पिकिंग बाय हैंड, हाथ से उसको निकाल निकाल के फेंकते हैं। तो यू कैन ऑब्जर्व एट योर होम ऑल्सो एंड दिस इज द इमीडिएट थिंग्स, यू कैन सी दैट इन योर हाउस दे आर यूजिंग दिस बाय हैंड पिकिंग। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, बिफोर कुकिंग द फूड वी यूज टू pick the things, right? In case of vegetable also, when suppose you are getting potato in a market, like you purchase 5 kg potato, तो आपको उसमें से कोई सड़ा हुआ दिखा तो आपने उसको बाहर फेंक दिया। So this is the hand picking method. Suppose tomato है, 20 kg tomato you brought for function, तो उसके अंदर बहुत सारे टोमेटो सड़े हुए हैं, तो you can pick and throw it out. There is no machine as such who will separate the impurities of the tomato. Now this is the method, shaving method, right? ये this is very important method. I need to focus you. And this is very simple method. अब ये जो shaving method होता है इसमें कैसा होता है, आपने घरों में देखा होगा कि there is a utensils. I tell you like this way. So there is a utensils. इसमें बहुत सारे नेट ऐसे बने होते हैं, ठीक है? It can be made by irons, right? It can be made by irons. ऐसा इसका shape होता है। क्या होता है, जैसे ही कोई भी चीज हमको सेग्रीगेट करना होता है, वी वांट टू सेग्रीगेट द प्योर थिंग्स, तो हम इसके अंदर पोर कर देते हैं, ठीक है? और वी आर सेकिंग बाय हैंड, जैसे इसको क्या होता है, इसमें हम ले लेते हैं और ऐसे ऐसे, जैसे यू यूज टू हैव वट एवर द फूड्स यू आर यूजिंग एट होम, तो हम क्या करते हैं उसको ऐसे 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 ऐसे, इफ यू सी योर हाउस यू विल कम टू नो दिस इज द प्रोसेस, इज कॉल्ड शेविंग प्रोसेस. सो बाय दिस प्रोसेस ऑल्सो यू कैन separate the harmful things from your food. And this is sedimentation. This is also a very simple method, sedimentation, where we can remove any harmful things from the food. And this is also a very simple method, but this sedimentation method is being used in the factory and industry, right? Then we are having filtration. See, filtration is a process where you can filter impure things from any liquid or you can say that very transparent mixtures. So everyone has seen, like suppose this is a round filter, right? We can fold it like this. Then again we can fold it like this, right? So this is the 4 part, and again we have to open it like this, okay? So this becomes a filter, and this is a cup, right? This is a cone, right? So suppose if you want to, this is a filter paper. This is called filter paper.
बाय यूज ऑफ फिल्टर पेपर वी कैन डू फिल्ट्रेशन प्रोसेस. सपोज आपके पास क्या है, यू गॉट एनीथिंग लिक्विड, राइट, एनीथिंग लिक्विड यू कैन गेट. सपोज आपने क्या किया, सुगर, वाटर, और यू कैन मिक्स, यू कैन समथिंग, जूस बनाया आपने, ठीक है. और इन ए विलेज एरिया यू डोंट हैव एनीथिंग्स टू फिल्टर, तो आपने क्या किया, उसको इसमें पोर किया. तो पोर करने से क्या होगा, जो आपका इम्प्योर चीज है वो फिल्टर में रह जाएगा, और जो प्योर चीज है, जो प्योर है, वो नीचे आके आपके ग्लास में आ जाएगा. सो दिस इज ए वेरी सिंपल मेथड जिसको हम फिल्ट्रेशन करते हैं, राइट. और इसके बाद आता है इवोपोरेशन, राइट. हमारे पास थोड़ा टाइम का कमी है, हम फिर दूसरे वीडियो में करेंगे, और आप लोग इसको ध्यान से देखना. फिर मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आपको, इसमें से कुछ पार्ट और रहेगा जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है. चलो बाय, थैंक यू.